Assalamu alaikum everybody. Today we are going to start the very last chapter of PMBOK, which is chapter 13, Project Stakeholder Management. Although that does not mean that your course has finished, you still have to go through the procurement chapter, and which will be taken in the next class by Khurram Gauri. And then you will have two more classes for MS Project and Primavera. And I hope that has been coordinated already. And on 4th of August, so far what I know is that on 4th of August, we are going to have our final exam. I'm putting off the mics because there's a lot of noise in the background. So today our topic is project stakeholder management. As in the previous lecture, I have told you, it is very closely associated with communications management, which we covered yesterday. And in this chapter, we are going to see the importance of stakeholder. As you might understand from the very beginning, when we created the charter, immediately after creating the charter, the very first action we took was to identify the stakeholders, and that was even before we could start even conceptualizing the project. So before the planning could start, we actually identified those stakeholders, and that means the stakeholder management plan was not yet ready, but we were identifying the stakeholders already. Naturally, all the management plans are developed in planning. So in planning, we would be developing the stakeholder management plan, and then later on, just like communication, we will have management of these stakeholder expectations and engagements, and as well as control of that. So project stakeholder management includes the processes required to identify the stakeholders naturally, and they include the people, groups, or organizations that could impact or be impacted by the project. Number one thing is to identify them. Anyone and everyone who can either impact or impacted by the project. Then to analyze their stakeholder expectations and their impact on the project. And finally, to develop an appropriate management strategy for effectively engaging these stakeholders in project decisions and our execution. You see, these three steps are all very important. And if you have already studied risk management, you do understand we were doing almost the similar kind of mechanism there. But here, all of this is being done right in the initiation. Just remember, in risk, we had, after we created the risk management plan, we identified the risks. We qualitatively analyze the risk, we quantitatively analyze the risk, and we develop the risk response plan. This is what we did in planning. Now, as far as the stakeholders are concerned, we are doing all this in initiation, because we cannot move ahead until and unless we have the stakeholders. So we identified the stakeholder, we analyze the stakeholder, and we develop an appropriate strategy right in the initiation. And what are we doing? Identify stakeholder is equivalent to identify risk. An analysis of a stakeholder expectation means qualitative and quantitative analysis of the stakeholder expectations. And equivalent to risk response is developing the appropriate management strategies for the stakeholders. Although we are not going to be as rigorous as we were about the risk, but the intensity of identifying the stakeholders would remain as it is for the risk. We said risks would be identified continuously throughout the life of the project till the project ends. Trust me, exactly the same phenomena is going to act about the stakeholders and stakeholder identification. Stakeholders will remain changing. They will continuously be changing. They will continuously be changing their status also. Maybe the person was a little stakeholder in the beginning, he becomes a big stakeholder later on. So the status of the stakeholder will also change. New stakeholders will also be introduced. Old stakeholders may go off.
So we have to keep the status of stakeholders updated. We keep identifying them, we keep analyzing them, and we keep developing appropriate strategies for each one of the stakeholders. So this is something which is very, very close to risk management. Remaining part of it is exactly along the lines of communication management. Stakeholder management also focuses on continuous communication with the stakeholders. This is where the communication comes into play. To understand their needs and expectations, addressing issues as they occur, managing conflicting interests, and fostering appropriate stakeholder engagement in project decision and activities. And what is prime here? The prime is stakeholder satisfaction. No matter what, but stakeholder is prime to us. Stakeholder satisfaction is the key to project success. So it should be considered as, it should be managed as a key project objective, stakeholder satisfaction. So we have four processes, as I just said. We identify the stakeholders, as I just explained to you. Then we develop a comprehensive stakeholder management plan, which would outline and we will reconfigure a lot many things which we have already done in identify stakeholder that will be properly formalized in stakeholder management plan. Like, the analysis will be further scrutinized, and the strategies and all that. So for future, we will also develop how are we going to manage the engagement of the stakeholders and how we are going to control this. So classically, there are only four processes, but I believe and I trust that the 13.1 identify stakeholder is almost equivalent to four processes by itself. Identify stakeholder, qualitative analysis, quantitative analysis, and strategy, appropriate strategy development for each stakeholder. Right. So in identify stakeholders, it is the process of identifying the people, groups, or organizations that could impact or be impacted by a decision, activity, or outcome of the project, and analyzing and documenting relevant information regarding their interest, involvement, interdependencies, influences, and potential impact on the project success. You see, so these stakeholders could impact our decision, an activity, or the outcome of the project. So these are the things which we expect they would impact. But these are not only the one kind of stakeholder. There could be stakeholders who are impacted by the consequence of the project, and that is the product. Whatever we produce, uh, the stakeholders, there are people who will be impacted by that. So they are also stakeholders. And later on, we will also study that there are people who think that they are stakeholders, but they do not fit in the first two categories. Still, we will treat them as stakeholders. Okay. Then plan stakeholder management, process of developing appropriate management strategies to effectively engage stakeholders throughout the project lifecycle. Although once we are identifying the stakeholders, we do develop some kind of outline strategy for dealing with the stakeholders. At least we group them into several sections and say this category of stakeholders is more important than those, and that kind of thing. So a little analysis is done there as well, but the detailed strategies are developed in the planned stakeholder management. And this continues throughout the life of the project based on the analysis of their needs, interests, and potential impact on project success. In execution, we have managed stakeholder engagement, the process of communicating and working with stakeholders to meet their needs and expectations. So now we are confirming, while the project is being executed, we are confirming whether they are okay with the reports and returns they are receiving. Are their needs and expectations are being fulfilled? Are they really satisfied? Are they also satisfied about the transparency, the level of transparency of the project? So we will have to interact with them. We don't have to leave them alone. We have to uh, do some hand holding while the things are going on, and that will earn us a better grade by, gaining their favor. So
Address issues is as they occur. If there are any issues of any stakeholder, only if I am engaged with the stakeholder, only then I can notice their issues and immediately take actions to take action to eradicate those issues. And foster appropriate stakeholder engagement in project activities. So I would have an agenda, what kind of a stakeholder this is, and what I want him to behave like. You know, I may be working on behavioral sciences, how to convert this stakeholder to a supporter of this cause. Maybe this is a negative stakeholder. Maybe he's against the project, and now I'm working on him as if he can be convinced and he could be rather be a supporter. In control stakeholder engagement, the process of monitoring overall project stakeholder relationships and adjusting strategies and plans for engaging stakeholders. Actually, this is again the postmortem. Whatever engagements we have to manage, we have managed. In execution, the things were actually happening. In control, the things have happened. Work performance data has been generated. Now, based on that, we do the postmortem and see what we did right and what we did wrong. And if we can fix anything, that could be done through a change request. We will create a work performance information out of it, and naturally, this will uh, result in improvement or moving a change request or improvement of the updation of the project management plan or document. And trust me, we also receive a change request from managed stakeholder engagement. While we are managing the stakeholder engagement, at that point also there might be a change request. So change request could come either from the managed stakeholder engagement or control stakeholder engagement, meaning either from execution or from monitoring and control. So this is a quick summary of these four processes. So these are the four processes. You see, they're not very complicated. The tools and techniques are pretty simple, and not a lot of strange things in here. So let us first talk about the identification of stakeholders. Identify stakeholder is the process of identifying the people, groups, and organizations, as I just said. So they can either, stakeholders are who can either impact or be impacted by. So when I say impact or be impacted by, that means those people who are affecting the project or be affected by the consequence of the project. So in both the people are stakeholders. So generally, when we talk about stakeholders, we are only concerned about those stakeholders who are. We are generally concerned about those stakeholders who are actually, giving us funding, or big stakeholders, and who are affecting the project main decisions. That is not correct. That is not the whole picture. Uh, when we are identifying risks and when we are identifying stakeholders, we should not be misers. We should not shy from spending time into it. This is important because anyone identified here would then be easy to manage. But if we do not identify someone and suddenly later on a stakeholder jumps in, and then it will be a great problem because we have planned everything accordingly. Naturally, there will be a lot of change. So try to identify as many stakeholders as possible, all those who can impact, no matter how small or big they are, or internal or external they are, how positive or negative they are, does not matter. Identify all the stakeholders. So we do that, and we see that who can impact it and who can be impacted by. And also, the key benefit of this process is that it will allow the project manager to identify the appropriate focus for each stakeholder. Let's say that strategy we are creating, that is the focus. So we analyze these stakeholders and then we develop that focus and strategy through which we are going to take care of these stakeholders. And if you look at the inputs, this is pretty simple. Why? Because um, before identification of stakeholder, we had nothing except for the charter was developed. And the only thing which is available is the charter. So charter is the only input here. We have enterprise environmental factors, organizational process assets. This is traditional. But we also have
procurement documents. Now, I would need your help to identify why are these procurement documents coming and what are they? Anyone who can help me on that? Please raise hands. What is this? जी सर। जी अब्दुल वहाब साहब बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल वहाब साहब। आशिर आप बता दें। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मेरा जरा इंटरनेट लैग कर रहा है, अनस्टेबल है कनेक्शन। मैंने कहा कि इनपुट में यहाँ पर प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट शो किए गए, ये क्या चीज है? सर प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, सर मेरे ख्याल से ये मुझे खास आइडिया नहीं है वैसे सर, इस चीज का मैंने ओके, पढ़ा हुआ नहीं है ज्यादा इसके बारे में। कोई मसला नहीं, कोई जी मसला नहीं। उमर साहब आप बताइए। सर जो हम लोगों ने चीजें प्रिक्योर की होती है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना सर जो चीजें प्रिक्योर की होती है सर, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स ही तो होते हैं एक तरीके से। इस वजह से सर ये इनपुट्स में इधर दिया हुआ है, तमाम उस चीज की नॉलेज। ओके चले, एक मिनट जी जरा ये वकास साहब से पूछ लें। आपका जवाब मैंने सुन लिया उमर साहब। मैं आप तकरीबन ठीक है, लेकिन मैं भी बात करता हूँ। जी वकास साहब। जी बोलिए। जी अरशद साहब। जी बोलिए सर अरशद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। असलम सर, बेसिकली प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स में तो सारी डिटेल्स वो होंगी जो कि प्रोजेक्ट के लिए प्रिक्योरमेंट्स हुई हैं। डेफिनेटली इसके लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग अरेंज की गई होगी, एंड देयर माइट बी कि कुछ फंडिंग आउटसाइड सोर्सेज से भी हुई हो, सो इट हैज टू बी इन द इनपुट सर। ओके आशिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं उसके बारे में डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगी, और इसमें प्रपोजल्स वगैरह में भी बताए हुए उनकी डिटेल्स हों, कि जो रिक्वेस्ट होती हैं प्रपोजल्स की, और परचेजेस जो होती हैं गुड्स और सर्विसेज या किसी भी चीज की, तो उससे रिलेटेड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो होगी उसको हम कहेंगे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट। चलें सही है। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट तो जिसको भी कहेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि इधर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने के लिए क्यों जरूरी है? ये रिजवान साहब। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। सर इसमें ये है कि प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, वो जाहिर सी बात एक प्रोसीजर होगा आउटसोर्स करने का चीज़ें, तो वो एक स्टेक होल्डर के साथ एक डायरेक्ट लिंक बनता है, जो लोग हम लोग उसको आउटसोर्स कर रहे होते हैं चीज़ को। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और जैसे भी हम प्रिक्योर कर रहे होते हैं जो भी चीज़, उसका एक पूरा प्रोसीजर होगा कि क्या तरीकाकार होगा आपको इसमें अप्लाई करने का, हमारी जो भी कंपनी होगी या प्रोजेक्ट होगा उसके साथ काम करने का। तो ओके उसका ताल्लुक एक स्टेक होल्डर के साथ है। चलें सही है। अच्छा ये मैं आयशा से पूछूं। आयशा बोलिए आप जरा क्या कह रही हैं? सर सर की बात सही है कि मतलब जो डॉक्यूमेंट जो चीजें हम लोग प्रिक्योर करेंगे वो
मतलब उनके डॉक्यूमेंट सारे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में आएंगे, लेकिन जिस सप्लायर से हम चीजें प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा है कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के जो भी मतलब जो बंदा या जो भी इस प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेगा वो हमारे स्टेक होल्डर में आएगा। इफेक्टेड या मतलब इफेक्टी जो होगा, तो उसमें जिस सप्लायर से हम कोई चीज परचेज करेंगे, कुछ चीज प्रोक्योर करेंगे, जाहिर है उसके डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे, और इसलिए हम उसको इनपुट में रखेंगे, और इसलिए उसको हम लोगों ने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वो किसी न किसी उस पे जो है ना हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रहा है। जी आशिर, आपने फिर हाथ खड़ा किया था। आशिर कुछ कहना सर चाह मैंने पहले किया था, ओके मैंने पहले किया था, अब नहीं किया जी, ओके ओके सॉरी। अच्छा जी, देखिए सब लोग आप जो बात कर रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने ये कहां से एज्यूम कर लिया कि ठेके दिए जा चुके हैं, डाटा मौजूद है, कागजात बन चुके हैं सारे, ये कैसे हो गया? ये कहां, आप ये तो देखें ये डॉक्यूमेंट आ कहां से रहे हैं, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट कहां से आ रहे हैं? ये देखें, ठेके कब दिए जाते हैं? ठेके दिए जाते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान। ये डॉक्यूमेंट जो आपको आया है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये आए हैं आपको प्लानिंग से, अभी तो कोई ठेका दिया ही नहीं गया, अभी तो कोई ठेका दिया ही नहीं गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वहां से सीधे बने हैं कि क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें हमने मतलब आउटसोर्स करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट खाली बने हैं, अभी ठेका अनाउंस नहीं किया, अभी कोई हमने कार्रवाई नहीं डाली, और हम इन आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर को भेज रहे हैं कि सर अभी हम आगे जाएंगे, आप हमें जो आपने पहले स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए हैं बराए मेहरबानी उसमें ये भी क्राइटेरिया ढूंढें और बताएंगे इस किस्म के जो ठेकेदार हैं वो कौन, वो भी आइडेंटिफाई कर दें हमें मोटे मोटे। ठीक है जी, तो इस वक्त हम सिर्फ पर्सपेक्टिव जो लोग बिडर्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये कतन मतलब नहीं है कि ठेके दिए जा चुके हैं और पता नहीं क्या कुछ हो चुका है। ये अभी तो कुछ प्रोक्योर नहीं हुआ। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स वर क्रिएटेड इनिशियली इन दी प्लानिंग, और प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब आरएफपी का फॉर्मेट, फलानी चीज कागजात बनाए थे हमने सिर्फ, अभी उनको सर्कुलेट नहीं किया था। सर्कुलेट होते हैं वो एग्जीक्यूशन के दौरान, और एग्जीक्यूशन में वो ठेके दिए जाते हैं। राइट, ये बात समझ आ गई होगी जी वकास साहब? वकास साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए बोलिए। ओके आयशा बोलिए। जिस तरह अभी फिर ये आपने बात की है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जहां तक मुझे पता है, डॉक्यूमेंटेशन हम तब करते हैं जब हम कोई चीज कर लेते हैं। इसको फिर हम टेम्पलेट क्यों नहीं कहते? मतलब प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो हो चुकी है उसके डॉक्यूमेंट्स है। जब हमने इसको प्लानिंग में वो किया, प्लानिंग में तो सारे सिर्फ टेम्पलेट्स बनते हैं, उसमें तो हम उसको डॉक्यूमेंट तो नहीं कंसीडर कर सकते। डॉक्यूमेंट तो ओके मेरे ख्याल से उस वक्त करते हैं कि जब एक काम हो गया है। ओके, देखिए मेरी बात सुने, इनिशियली जब एक चीज फिल नहीं होती। जी सर। मुझे ये बताइए, टेम्पलेट तो होगी ना अपनी जगह पर, आप मुझे ये बताइए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या चीज होती है, कौन बनाता है? ये एक प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है। सॉरी सर। रिक्वेस्ट जी जी फॉर प्रपोजल आरएफपी कौन बनाता है? सर, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे पहले वही मतलब जिस तरह आपने कहा है कि प्लानिंग में हम ही मतलब परचेज करने से पहले वो कोटेशन देते हैं, और कोई मतलब बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मेरी कि परचेज तो नहीं किया ना अभी, अभी तो आपने कागज बनाए हैं कि जनाब ये मेरी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है और मैं इसे फ्लोट करूंगा तो लोग जवाब देंगे। अभी तो मैंने फ्लोट नहीं किया, मैंने जितने भी ठेके देने थे अपने पूरे प्रोजेक्ट में, मैंने उनके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या जो भी ये इसको कहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स,
ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बना के रख लिए। जहां तक कि हर डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है उसका भी मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया, मतलब बना के रख दिया, कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बना के रख दिया। उससे फायदा मुझे ये होगा कि जब अगली पार्टी आएगी तो मैंने पहले से ही सोच समझ के अपनी तरफ की क्लॉजेस डाल दी हैं। अब उसको हम कहेंगे ये पड़ा हुआ है तुम्हारा, ये पड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्ट, इसमें जो चेंजेस करनी है करके हमें बता दो, हम एग्री कर लेते हैं और निगोशिएट कर लेते हैं। कहने का मतलब है आपने जितनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोक्योरमेंट के हवाले से करनी है पहले से ही तैयार होगी प्लानिंग के अंदर, और एग्जीक्यूशन के दौरान जब जब ठेके देने की जरूरत होगी तब तब हम इन डॉक्यूमेंट्स को फ्लोट करेंगे और फिर कार्रवाई शुरू होगी। इसका मतलब है कि ये मैंने आपको साबित किया कि प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड बिफोर हैंड इन प्लानिंग ऑलरेडी, और ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही करेगी, वो एट द निक ऑफ द टाइम डॉक्यूमेंट बनाने पे नहीं लग जाएगी। मतलब मैंने गवर्नमेंट में देखा है ऐसा होता हुआ कि जनाब वो ऊपर से हुक्म आया कि ये टेंडर फ्लोट कर दो, उस बंदे ने क्या किया कि उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, पुराना कागज उठाया, पुरानी टेम्पलेट उठाई, उसके अंदर वो फिगर चेंज किए, अखबार में दे दिया। ही इज नॉट बॉदर्ड कि ये काम क्यों करना है, कैसे करना है, इसका क्या हिसाब किताब है, पूरी कोई डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स बनाई जाए, नथिंग इज क्रिएटेड। तो बगैर सोचे समझे हम काम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि पहले से ही सोच समझ के अच्छी तरह से प्लान सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, ना सिर्फ ये, इवन कॉन्ट्रैक्ट का भी ड्राफ्ट बना के रखने कि जनाब हमारी तरफ की शर्तें ये हैं। बात समझ आई आयशा? जी सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू जी। ये वकास साहब आपकी आवाज नहीं आती रही अभी तक, आप भी बोलने की कोशिश कीजिएगा। सर अभी आ रही है आवाज? जी आप सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी तो सर मैं इसमें ये कहना चाहता कि अगर इसको बेसिकली जो यूजर है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो वो चीज़ लेना चाह रहा है, प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंट का इस जगह पर मतलब आप ये कहने का है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसको डिफाइन करना चाहे, आइदर वो उसको इवन किसी ऐड के लिए कर रहा है, टेंडर फ्लोट करने के लिए कर रहा है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर रहा है कि उसमें वो चीज़ें क्या। मेरे ख्याल में तो इस वक्त तक जो फिर आप ये कह रहे हैं कि ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना किसी को अवार्ड हुआ है अभी तक, तो ये वो प्री हैंड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उस चीज़ की डिफाइन की जा रही है कि आप लेना क्या चाह रहे हैं, और फॉर दैट मैटर आप उस चीज़ को शेड्यूल ऑफ स्टोर में जो लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा कि जी, आपको चाहिए क्या, आप उसको फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट यही होते हैं सर। क्या होते हैं प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अलावा? क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो सर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वो एक मैच्योर फॉर्म में आ जाता है। आखिरी उससे पहले तक जब इसका इंडेंट बनता है, एक चीज इंडेंटिंग है जिसमें इंडेंटिंग में आप अपनी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं। जी, वो हम पहले करके रख रहे हैं, वो हम पहले कर रहे हैं, वो हमने प्लानिंग में कर दी है, वो यही डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड आर और उसी रिक्वायरमेंट ओके सर, इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब वो और इसी के बेस पे जब हम बात करते हैं सर कि RFQs की या प्रपोजल की या आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने की जो स्टेजेस आ रही हैं उन्हीं में एक स्टेप है जिसमें आप टेंडर फ्लोट कर देते हैं, टेक्निकल ओपनिंग्स और कमर्शियल ओपनिंग्स के बाद आप उनकी शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं, उसमें प्राइस की भी, टेक्निकल की भी, और जो वेंडर्स आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं वो भी उसी टाइम पे होते हैं सर। सर देखें, आप एक बात नहीं समझ रहे हो, वो ये कि ये फ्लोट आप जब मर्जी करें, लेकिन ये सर कागजात बनाए कब जाते हैं? ये कागजात जब कॉन्ट्रैक्ट वाली फेज में आप जा रहे हो तो उससे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं, इंटेंटिंग के टाइम पे या प्लानिंग के टाइम पे ये चीजें उस वक्त फाइनल की जाती हैं। जी एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है, प्लानिंग के टाइम पे ये काम किया जाता है, और जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो प्लानिंग ही के वक्त सोच समझ के सारी चीजों के डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार करके रख लेते हैं। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो से कि एक 3 महीने बाद देना है, एक 6 महीने बाद देना है, एक 9 महीने बाद देना है, तो उसका प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट का तब शुरू किया जाएगा, लेकिन कागजात तो बिल्कुल सर, पहले बने होने चाहिए ना। अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर 3 महीने बाद देना है तो मैं 2 महीने बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करूंगा, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस इज कि आप लेकिन सर इसमें ये जी एग्री, टोटल एग्रीड आपकी बात से, लेकिन सिर्फ एक इसमें थोड़ी सी ये लफ्ज जो कंफ्यूजन करता है इनपुट्स में, जी प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, ये रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन या आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जी इट कैन बी द स्पेसिफिकेशंस, वो हों तो सर, प्रिक्योरमेंट डॉक्यूमेंट का मतलब तो ये होता है कि सर आपने जो चीज प्रिक्योर कर ली है उसकी डॉक्यूमेंटेशन। नहीं 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 नहीं, आपकी ये गलत फहमी है ना। आप देखें, बात ये अच्छा, मैं ओके मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग अबाउट प्रोक्योरमेंट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनती है वो आपने पहले से बना के रख लेनी है। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी, मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा जी वो लेटर ऑफ इंटेंट देना है, उसका तो फॉर्मेट बना होगा, उसका फॉर्मेट भी बना होगा और पूरा हिसाब किताब उसका बना होगा, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके आप उसको इशू कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ दीज थिंग्स के जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ठेके पे देनी है, उसके तमाम कागजात का मतलब पूरा पेट भरा हुआ होगा। मतलब जो मिसाल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोटेशन फ्लोट करनी है, एक के अंदर आरएफपी फ्लोट करनी है, वो आरएफपी वो कोटेशन पहले से बना के रखी होगी और उसके बाद इवन आखिर तक जो डॉक्यूमेंट बनने हैं उनका एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ होगा। फॉर्मेट भी नहीं कहना चाहिए, वो मुकम्मल ही होगा। उसको थोड़ी बहुत अमेंडमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है कि लेटर ऑफ इंटेंट में कुछ डेटें चेंज करनी है, कुछ करनी है, वो आप उस वक्त कर लीजिएगा। या फॉर दैट मैटर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे थे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन उस वक्त होना है ना। मैं ही कह रहा हूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी बना के रख देते हैं, मतलब अपना लीगल एक्सपर्ट को बिठा के सोच समझ के अपनी तरफ के सारे इंटरेस्ट डिपेंड करके आप कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें डलवा के तैयार रख लेते हैं। और अब यू आर रिलैक्स, अब आपने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट देना है उस वक्त वो पार्टी आएगी, उसे जो निगोशिएशन होगी उसके वो चीजें बीच में डाल देंगे हम, तो आपके प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स की ये बुनियादी चीजें बनी है। और मैं ये चाह रहा हूं कि इनकी रोशनी में, अभी तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स को इनवाइट भी नहीं किया ना, बिडर्स को इनवाइट भी नहीं किया, अभी मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर वाला मदद कर दे और इंडिकेट कर दे कि कौन कौन लोग हो सकते हैं जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड कर सकते हैं। अभी करने का तो मुझे नहीं पता कि कौन करेगा, लेकिन कौन हो सकते हैं, मार्केट में कौन लोग हैं, तो उन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर दे ताकि मैं उन पे नजर रख सकूं। दैट्स इट। जी अर्शद साहब। सर अर्शद साहब। सर थैंक यू वेरी मच। अभी आपने आखिरी जो दो सेंटेंसेस कहे उसमें मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। जी वहाब। अब्दुल वहाब साहब। अब्दुल वहाब साहब बोलिएगा। आपके आवाज, हाँ आप। जी सर। जी सर। सर आपने बिल्कुल कंक्लूड किया इसको कि प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि हम कहते हैं इसको लाइकली सप्लायर्स। आपने बात की कि जिनको एंगेज करना है एज स्टेक होल्डर्स, उसका डेटा हमारे पास पहले से अवेलेबल होती है कि किस चीज के लिए कितने बंदे लाइकली सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमें कोट देनी है सर। और उनकी हमारे पास एक इंटेंडेड प्राइस लिस्ट भी होती है जिसमें वो होता है कि उनके पिछले साल उन्होंने लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज लास्ट थी, तो वो डेटा होता है सर जिसको हम एज अ प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इसको हम एक और नाम से भी याद करते हैं, सिलेक्टेड, प्री सिलेक्टेड सेलर्स, प्री सिलेक्टेड, प्री क्वालिफाइड बिडर्स। प्री जी क्वालिफाइड सर। बिड, वो भी होती है। और जी उसमें सर। उसका प्रीमाइज ये होता है नॉर्मली, जैसे एमईएस है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने तमाम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने कहा इतने मिलियन से इतने इतने रुपए से इतने मिलियन रुपए तक के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो क्लास सी होंगे, इतने ये क्लास बी होंगे, क्लास ए होंगे, उनको उनकी फाइनेंशियल लिमिट रख दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरेस्टेड हैं वो प्री रजिस्टर हो जाएं। कॉन्ट्रैक्ट अभी कोई नहीं है, अब वो प्री रजिस्टर जी हो सर। जाएं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट देना होगा तो इस क्लास का होगा तो आप ही को बुलाएंगे, तो वो जो भी लोग उसमें रजिस्टर होंगे उन सबको वो बाई मेल भेज देंगे कि भाईजान आप कोट करें आके, और उन्हीं में से लोगों को मिलेगा। इसको प्री सिलेक्टेड भी कहते हैं। तो ये जी सर। अगर इस तरह का कोई इंतजाम है या नहीं है, तो हम ये आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर से मदद ले सकते हैं कि आप हमें कोई रिकमेंड करेंगे कौन कौन से लोग इस सिलसिले में हमारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक ये काफी डिटेल में डिस्कशन हो गई। आयशा कह रही है कि जी मैं कहीं आप ब्रेक पे जा रही हैं।
ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके जी, तो ये बात हो गई जी। तो इसमें हमने ये क्या कहा, इनपुट्स में प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, और ये मैं क्लियर करना चाहता था क्योंकि अक्सर लोगों को इसका नहीं पता होता कि ये कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली प्लानिंग के अंदर जाएं तो प्लानिंग में आपको ये प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हुए नजर आएंगे और वहां से वापस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे इनिशिएशन में। अगर आपको याद हो, जो मैंने शुरू में वो पूरा चार्ट पढ़ाया था उसके अंदर मैंने एक बात एक्सप्लेन की थी कि प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जहां से ऊपर जा रहे हैं इनिशिएशन के लिए। अच्छा हुआ कि ये बात हो गई और आप लोगों ने कहा और फिर उसके मुताबिक हमने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया। दिस इज रियली टू गुड। अच्छा जी, स्टेक होल्डर एनालिसिस का जो काम है ना, आइडेंटिफाई तो आप कर रहे हैं, इन स्टेक होल्डर का एनालिसिस आपने यही करना है और स्ट्रेटजी भी किसी हद तक बन जाती है। लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि जब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान बनेगा तो हम ज्यादा मुफस्सिल तरीके के साथ उसका तरीकाकार कर लेंगे, क्योंकि अभी तो चार्टर ही बना है, आइडेंटिफिकेशन। तो अगर से कि यहां से मुझे नाम भी मिल जाते हैं स्टेक होल्डर के, तो वहां जाके हम उसको एनहांस या इंप्रूव कर लेंगे। लेकिन एज सच स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन के अंदर स्टेक होल्डर एनालिसिस होता है और इसके आउटपुट में स्टेक होल्डर की स्ट्रेटजी निकलती है। तो स्टेक होल्डर रजिस्टर निकलेगा और स्टेक होल्डर की स्ट्रेटजी निकलेगी, बाकी हमारी एक्सपर्ट जजमेंट वगैरह है। फिर जनाब ओके, स्टेक होल्डर एनालिसिस को एक नजर देखिए। असल में मेरे पास एक और प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है और वो गालिबन सेलियंस मॉडल के ऊपर है। आई डोंट नो वो इसमें शायद इंक्लूडेड है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेक होल्डर एनालिसिस को। हम देखते हैं, स्टेक होल्डर एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ सिस्टमैटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपको रिस्क के साथ एसोसिएट किया था, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड फिर उसका क्या कहते हैं, वो रिस्पॉन्स बनाता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है। 100% बिहेवियर वही है जो रिस्क का है, ठीक है जी। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मकसद यही है, स्टेक होल्डर भी रिस्कों की तरह बहुत ज्यादा होंगे, सारों को एनालाइज करने में बड़ा टाइम लग सकता है। तो हमें कोई छांटने का तरीका बनाना होगा, जैसे हमने रिस्क में नहीं बनाया था कि हमने सीप बना ली थी और हमने कहा था कि इसके हिसाब से हम बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को छान लेते हैं, तो इस तरह हम बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को भी छानना चाह रहे हैं और फिर इसी तरह से उनका ओवरऑल इम्पैक्ट, ये वो बिल्कुल वही साइंस है जो रिस्क वाली थी। जो कुछ आपने वहां पढ़ा समझेंगे वो नॉलेज यहाँ पे भी उसी तरह से काम आएगा। तो उनके जनाब ये सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन और इन्फ्लुएंस उसकी क्या है, रिलेट्स देम टू द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर रिलेशनशिप विद द प्रोजेक्ट एंड विद अदर स्टेक होल्डर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेक होल्डर का हमसे क्या रिश्ता है या किसी और से, बाकी स्टेक होल्डर से क्या रिश्ता है। हो सकता है कि वो स्टेक होल्डर का हमसे डायरेक्ट कोई रिश्ता ना हो और वो किसी दूसरे स्टेक होल्डर के साथ असल में नथी हुआ वो, और उसकी वजह से वो हम पे वजन बन रहा हो। खैर एनीवेज, वो वजन बने या ना बने, एनीवेज हमें जो, मैंने एक बात आपसे कही थी, जो स्टेक होल्डर है वो भी और जो नहीं है और ये समझता है कि वो हमारा स्टेक होल्डर है, हम उसको वेलकम करते हैं। क्योंकि अगर आपने ना किया ना वेलकम, तो ये आपके लिए डेड लोड बन जाएगा, ये आपके लिए ऐसा मसला खड़ा करेगा कि आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा, इवन वो आपके प्रोजेक्ट से कंसर्न ना भी हो। मतलब मिसाल के तौर पे बाजा डैम बन रहा है जनाब इधर नॉर्थ में, और उधर बलूचिस्तान में एक बंदा बैठा हुआ पंगा ले ले कि भाजपा डैम नहीं बनने देना मैंने, वो भाई तेरा क्या लेना देना। तो मतलब कहने का ये है कि वो डायरेक्ट भी नहीं बल्कि इनडायरेक्ट भी कहीं से उसके स्टेक होल्डर होने का कोई चांस शायद ना बनता हो। या चलें वो उसको भी छोड़ दें, आप कहें जी एक एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है कि किसी और मुल्क में है और पिछले 40 साल से वहीं बैठा हुआ है, उसने वहां से शोर मचाना शुरू कर दिया, ये डैम नहीं बनने दूंगा मैं। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? तो जो ये कह रहा है कि मैं ये नहीं बनने दूंगा या मैं इसका फेवर में हूं या इसके खिलाफ हूं, उस स्टेक होल्डर को खातिर में लाइए। वो स्टेक होल्डर है, उसको अंडरस्टैंड करना होगा ये क्या क्या रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रिक है, ये क्या इसके पीछे एजेंडा क्या है और इसको कैसे पैसिफाई करना है, क्योंकि इन सारे लोगों को पैसिफाई करना है। ये जो मीडिया चाचा करना शुरू कर देता है बात बात के ऊपर, तो बुनियादी तौर पे दे वांट टू बिकम स्टेक होल्डर फॉर एवरीथिंग, एंड उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ उनको देने की जरूरत होती है।
अब वो किस तरीके के साथ उनको हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, ये गवर्नमेंट का कमाल है। गवर्नमेंट को इन चीजों में कमाल हासिल होना चाहिए, और कमाल फिर ये दूसरे तरीके से दिखाते हैं, ये लिफाफे बांटने शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत टेक्निक है। बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेक होल्डर को हम किस तरह से पैसिफाई कर सकते हैं। तो और भी तरीके हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने उनको रिश्वतें दे के ही उस साइड पे लाना है, क्योंकि फिर वो उनकी आदत बन जाएगी कि यही तरीका होता है, और ये चीजें बड़े कॉमनली हमारे यहाँ चलती हैं। खैर जी, तो स्टेक होल्डर एनालाइज हो गया जी। अब आ जाइए, स्टेक होल्डर एनालिसिस जनरली फॉलोज द स्टेप्स डिस्क्राइब्ड। पहले क्या करते हैं जी, आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल स्टेक होल्डर और उनकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज देयर रोल्स, डिपार्टमेंट्स, इंटरेस्ट, नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लुएंस। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जी, ये नोट करें अच्छी तरह से, एक एक स्टेक होल्डर का थॉरो एनालिसिस होना चाहिए। की स्टेक होल्डर्स आर यूजुअली इजी टू आइडेंटिफाई, बड़े बड़े होते हैं। They include anyone in a decision making or management role who is impacted by the project outcome, such as the sponsor, project manager, primary customer. Identifying other stakeholder is usually done by interviewing identified stakeholders and expanding the list until all potential stakeholders are included. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉशन दे दूंगा, वो ये है कि ये जो स्टेक होल्डर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि विजिबल ना हो बहुत ज्यादा। हमें इन स्टेक होल्डर्स को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और मेरा मतलब है कि जिस तरह हमने रिस्क में कहा था ना कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, यू हैव टू बी स्लाइटली अ बिट मोर, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, क्रिएटिव होना पड़ेगा कि अच्छा और कौन हो सकता है, ताकि एक दफा सारी चीजें, सारे कंसर्न टेबल हो जाएं और फिर उसके हिसाब से हम उन चीजों को हैंडल कर सकें। एनालाइज द पोटेंशियल इंपैक्ट एंड सपोर्ट ईच स्टेक होल्डर कुड जनरेट and classify them so as to define an approach strategy बनाने के काबिल हो सकें। In large stakeholder communities, it is important to prioritize the stakeholders to ensure the efficient use of effort to communicate and manage their expectations. देखिए, स्टेक होल्डर के साथ हमारा जो ताल्लुक होगा वो कम्युनिकेशन के थ्रू बनेगा, बात के थ्रू बनेगा। हम उनके साथ मिलेंगे या बात करेंगे, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारा जो जरिया है उनके साथ वो कम्युनिकेशन है। स्पेसिफाई जो करना है हमने स्टेक होल्डर को, वो उसी के थ्रू करना है। Assess how key stakeholders are likely to react and respond in various situations in order to plan how to influence them to enhance their support and mitigate potential negative impacts. स्टेक होल्डर को आपने क्लासिफाई भी करना होता है कि जनाब ये हमारे खिलाफ है, ये हमारी फेवर में है, ये हमारा फ्लैग होल्डर है, फ्लैग बीरर है, ये तो बिल्कुल ही हमारा सपोर्टर है और ये लीड कर रहा है इनिशिएटिव्स को। तो जो भी क्लासिफिकेशन आपने उसको दी है, उसके हिसाब से भी डिसाइड करते हैं कि अभी जब हमने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई किया था तो उस वक्त ये हमारे खिलाफ था, और अब हमारा एजेंडा ये है कि हमने स्टेक होल्डर को कन्विंस करके कहाँ लाना है, उसको सपोर्टर तक लेके आना है, उसको लीडर तक लेके आना है, या व्हाटएवर। अच्छा जी, इसके बाद हाँ जी, ये आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ मॉडल हैं। कोई भी मॉडल इस्तेमाल हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड है, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स को अमूमन 2 वेरिएबल्स के अगेंस्ट मेजर कर सकते हैं, ज्यादा से भी कर सकते हैं, आप मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पे 2 क्राइटेरिया पे, या तो आप पावर और इंटरेस्ट के हवाले से देखते हैं, या पावर ऑफ इन्फ्लुएंस के हवाले से देखते हैं, या इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट के हवाले से देखते हैं, या सेलियंस मॉडल था जो मैं कह रहा था कि मेरे पास उसकी कहीं पे पड़ी हुई है स्लाइड्स, मैं देखता हूं, अगर वो मुझे मिल जाती हैं तो मैं वो भी अभी आपको दिखा दूंगा। पहले हम देखते हैं पावर इंटरेस्ट का ग्रिड जो है, इसमें क्या है, एक एक्सिस के ऊपर पावर होती है और एक होता है इंटरेस्ट, लो टू हाई की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूं, आप इस डायग्राम को देखिएगा। फर्ज करते हैं ये डब्बा जो पीछे बैकग्राउंड में बना हुआ ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। लेट अस गिव अ क्लासिफिकेशन टू इंटरेस्ट के लो से हाई जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, 0 से 10 तक है, और 0 से 10 तक वो है,
और ये पीछे डब्बा नहीं बना हुआ, ये जो जिसके अंदर ये क्रॉस बना हुआ है, सब ये नहीं है। इस एक्सिस पे आपने शीट के ऊपर नोट किया कि ये जो एक स्टेक होल्डर है, इसका इसका पावर लेवल जो है 1 से 10 पे 5 पे आता है या 6 पे आता है, और इसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कुछ 4 पे आता है। तो आपने जब उसको यहाँ प्लॉट किया तो वो यहाँ कहीं आ गया, ए आ गया। फिर ऐसे बी आया, बी गालिबन इंटरेस्ट में 6 है और पावर में 9 है। अगर एच को देखें तो ये पावर में कोई 6 होगा, 7 होगा, और इंटरेस्ट में कोई 8 होगा। तो इस तरह वो जो भी आपने इनके नोट किए हैं उस एक्सेल शीट के अंदर या टेबल के अंदर, वो चीजें जब आप प्लॉट करेंगे इन दो एक्सिस पे, इंटरेस्ट और पावर के हिसाब से, तो वो चीजें जो है इस तरह से ABCD सारे स्टेक होल्डर हैं, ये प्लॉट हो जाएंगे। अब आप क्या करें कि इस 1 से 10 तक के डब्बे को बंद कर दें, ठीक है, ये पूरा डब्बा बना दें और डब्बे को 4 हिस्सों में सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब जो टॉप राइट पे जगह है वो रिप्रेजेंट कर रही है हाई इंटरेस्ट और हाई पावर को। ये जो B, H और F यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हैं हाई पावर वाले। तो अगर देखा जाए तो क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हो गया ना आपका, छांट तो लिया आपने, ये एक तरीका है छांटने का, आपने छांट लिया, बड़े बड़े ये हैं, इनको उठा ले। इनके साथ क्या सलूक करना है, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हम स्ट्रेटेजी भी डिवाइस कर दी। हमने कहा कि यार ये जो है ना, ये बड़े हैं, इनको जरा मैनेज क्लोजली, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। फिर एक स्टेक होल्डर है जो हाई पावर है और लो इंटरेस्ट है, वो ये ए है, इंटरेस्ट इसका कम है लेकिन पावर ज्यादा है। तो ऐसे स्टेक होल्डर को ज्यादा तंग नहीं करते। अब आप कहें कि नहीं यार ये तो बहुत कुछ, मिसाल के तौर पे आप कहें कि जी ये एक बैंकर है जिसने हमारे प्रोजेक्ट को लोन दिया है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जनाब, इसे पैसे नहीं है और ये तो बहुत इज्जत वाली बात है। तो आप इसको पकड़ के रोजाना की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना शुरू कर दें और इसको बार बार फोन करके बताएं, सर अब कंक्रीट पड़ गई है, अब छत डाल रहे हैं। मेरा मतलब है बैंकर को फोन कर करके जब आप ये बताएंगे और उसको आप रोजाना लंबी लंबी रिपोर्टें भेजेंगे, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे मेरा काम करने दो। What nonsense are you engaging me into? I am not interested. I am not interested how you are running your project. I am just interested how you are going to pay my loan back. I hope you understand. तो उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन को समझते हुए सिर्फ उतना ही पूरा करना। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि स्टेक होल्डर की जो नीड और एक्सपेक्टेशन है उतना ही उसको देना चाहिए। ज्यादा देंगे तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। ये स्टेक होल्डर आपसे नाराज भी हो सकता है कि ये क्या बकवास है, ये मुझे जो डाटा दे रहे हैं। तो ये यू हैव टू कीप देम सेटिस्फाइड, व्हाट दे वांट गिव देम ओनली दैट, राइट। फिर इसी तरह ये एक स्टेक होल्डर है जो हाई इंटरेस्ट रखता है, ये दो हैं C और E, और इनके पास पावर बचाने के बाद बहुत कम है। ये हैं कौन? ये आम आवाम है, ये वो आम आवाम है जिसके लिए सड़क बन रही है और इससे कोई पूछता भी नहीं है मगर अल्टीमेट यूजर तो ये है, इंटरेस्ट तो इनका हाई है, पावर बेचारों से कि है कोई नहीं है या बहुत लो पावर है। ऐसे स्टेक होल्डर से मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी, ऐसे स्टेक होल्डर से मैंने कनेक्शन बरकरार रखना है, मैंने उनको इन्फॉर्म रखना है। अब ये जैसे कोई चीज गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट हर एक बंदे के पास तो जा भी नहीं सकती ना पूछने के लिए कि आपके इलाके से सड़क गुजार लूं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मस्ट कीप देम इन्फॉर्म। बाकायदा कैंपेन चलनी चाहिए टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों में कि जनाब ये चीज हो रही है, इन तारीखों में आप के लिए डाइवर्जन रूट बना दिए गए हैं, आप इधर से जाएं उधर से जाएं। बजाय इसके यहाँ दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है, यहाँ पे अपनी फोटोएं लगा लगा के तो वो क्या कहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट जाती शुरू कर देते हैं, और असल जिनका मसला है और जो चीज बतानी है लोगों को वो बताते कोई नहीं है। इसकी मैं बेहतरीन एग्जांपल दूं, इधर जनाब परेड होती है इस्लामाबाद में 23 मार्च की। जब वो परेड होती है तो थोड़ी देर के लिए मिलिट्री पुलिस या नेवल पुलिस और ये एयरफोर्स, ये पुलिस जो है सारी, ये काबू कर लेती है सारा इलाका, और उसके बाद आप 2-3 दिन देखिए कैसा कोई निजाम काबू में रहता है। उन्होंने रेड रूट, ग्रीन रूट, येलो रूट बना बना के और नक्शे बना के और टीवी पे बार बार आके समझाता है ऐसे है, फलाने लोग यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे, आम लोगों के लिए ये रास्ता खुला रहेगा। भाई
ये काम अगर ये लोग कर सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर वो कोई इनिशिएटिव लेती है। ये एक छोटा सा परेड कराने के लिए इन लोगों ने इतना वक्ता डाला हुआ है और सारी दुनिया को समझा दिया इन्होंने मिनटों के अंदर, और 100 तरीकों से समझा दिया। बोर्ड भी लगे हुए हैं जगह जगह पर, उनके ऊपर भी वो लाल पीली लाइनें लगी हुई हैं। रास्ता हर कोई मतलब बच्चे को भी समझ आ गया है कि रास्ता कौन सा है किधर जाने का और किस कहां से नहीं जाना। और यहाँ पे जनाब किसी को पता ही कुछ नहीं है। जब मुल्क में डिजास्टर आ जाते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, पता ही कोई नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये किसकी कमजोरी है? ये है जनाब अली नाअहल आपका ब्यूरोक्रेसी और आपकी गवर्नमेंट। उनको अपना काम करना ही नहीं आता। ठीक है जी। तो ये इनको अगर हम इंफॉर्म्ड रखें तो आप जरा अंदाजा कीजिए कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड होगा। आपकी अवाम आप पे अंधा एतमाद करेगी कि यार गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक कर रही है। जो कर रही है मेरे नॉलेज में, मुझे पता है ये सड़क क्यों बन रही है, मेरे किस काम आएगी, कब किस तारीख को शुरू होगी, किस तारीख को खत्म होगी, कितना पैसा लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना फेयरली दिया गया है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है। मुझे बताएं कौन नहीं एग्री करेगा इस बात से कि दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। फिर आप आ जाइए आप लो इंटरेस्ट वाले और लो पावर वाले, तो ऐसे लोग जो हैं ये मैटर नहीं करते इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग, मगर इनके ऊपर नजर रखना जरूरी है। अच्छा, अब एक बात बड़ी आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो ये है आज का स्टेटस स्टेक होल्डर्स का। अगर मैं 1 महीने बाद का स्टेटस बनाऊं तो ये यहां नहीं होंगे जहां आपको नजर आ रहे हैं। ये इधर से हो सकता है ए यहां से मूव करके यहां नीचे आ जाए, जी यहां से मूव करके वो ऊपर मैनेज क्लोजली वाले में चला जाए। इनका जो पावर और इंटरेस्ट है ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट चेंज होता रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि नए स्टेक होल्डर ऐड हो जाएं और पता लगे सी बिल्कुल गायब ही हो गया है, वो अब नहीं पाया ही नहीं जाता। Yes, of course, this is what I was mentioning. This is going to happen, and that is why we need to closely monitor throughout the life of the project ये कौन सा स्टेक होल्डर नया आया गया, क्या हिसाब किताब है, कौन बड़ा हो गया कौन छोटा हो गया, क्योंकि then they will be governed accordingly। शुरू में तो मैंने इसको कहा कि कीप सेटिस्फाइड रखना है, अब ये जनाब गायब हो गया सीन से। तो जब यार ये नीचे आ गया, ये मॉनिटर वाली जगह पे आ गया, तो अब मुझे उसको वो कीप सेटिस्फाइड रखने की भी जरूरत नहीं है। अब मैंने सिर्फ उसके ऊपर नजर रखनी है, दैट्स इट। पता चलता है कि कस्टमर जो है, ये सी जो है, ये उठ के जनाब ऊपर चला गया मैनेज क्लोजली में। अब तो जनाब इसको मैनेज क्लोजली करना पड़ेगा। तो ये हमें कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहना पड़ेगा। ये जनाब इंटरेस्ट और पावर का था। इसी तरीके के साथ हम इस तरह के ग्राफ हमारे पावर ऑफ इन्फ्लुएंस का भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये तो दो वेरिएबल है ना, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाएं तो हम सेलियंस मॉडल बनाते हैं। सेलियंस मॉडल में मिसाल के तौर पर डिस्क्राइबिंग क्लासेस ऑफ स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन देयर पावर, अर्जेंसी, लेजिटिमेसी, 3 चीजें आ गई। अब 3 चीजों का कैसे बनेगा? वो तो या तो 3 डायमेंशनल बनेगा ना, 3 डायमेंशनल बनेगा। मेरा ख्याल है मैं आपको वो सेलियंस मॉडल निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको बात समझ आएगी। उसको 2 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं देख लूं कि इधर है तो नहीं वो स्लाइडें मौजूद, नहीं आनी है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी करके आपको बताता हूँ। ये जी सेलियंस मॉडल आ गया, अभी आपकी नजर सामने आ जाएगा।
ये जो स्टेक होल्डर एनालिसिस के ऊपर मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी, इसको एक नजर देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल दिखाया हुआ है, तो यही बातें हैं, बात समझ आ जाती है ज्यादा। क्यों एनालाइज किया जाता है? 2 डायमेंशनल मॉडल होते हैं, साइलेंस मॉडल होते हैं। ये जनाब वही पावर इन्फ्लुएंस, पावर इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट, पावर इन्फ्लुएंस ग्रिड, फिर इसकी इंपॉर्टेंस और फिर सेलियंस मॉडल। ये 2 डायमेंशनल मॉडल जो है ये इस तरह की शक्ल होगी इसकी, ये तो अभी आपने देखा है, ठीक है जी। तो इसमें आपने देखा जो मैंने क्लोजली वाले हैं वो उनका हाईएस्ट प्रायोरिटी पे उनका रंग भी लाल है और वो रंग भी उनका डिफरेंट है। तो खैर दिस इज हाउ इट इज, ये तो खैर आसान काम है। अब ये पावर इंटरेस्ट का भी हो सकता है, पावर इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट का, जैसे भी आप 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो आपने बनाने हैं वो इस तरह से बनेंगे। अगर वेरिएबल 3 हो गए तो क्या करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट का है, ये पावर ऑफ इंटरेस्ट का है, ये इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट का एक जैसे देखने में एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ इसके 2 साइडों पे पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अगर कौन कौन से एट्रीब्यूट आ जाते हैं? पावर आ जाती है, लेजिटिमेसी आ जाती है, अर्जेंसी आ जाती है। सेलियंस में 3 चीजें आ गई ना, पावर, लेजिटिमेसी और अर्जेंसी। इसको कैसे डील किया जाएगा? अ डेफिनेशन इंक्लूडिंग 3 टाइप्स ऑफ पावर, कोर्सिव पावर होती है, यूटिलिटेरियन पावर होती है, नॉर्मेटिव पावर होती है। उसके बाद आपके जो लेजिटिमेसी है वो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर लेजिटिमेसी होती है, सोशल लेजिटिमेसी होती है। सोशल लेजिटिमेसी में कोई सर्टेन बिहेवियर्स हैं जो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, कि मुंह ना चलाओ, ये ना करो, अ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन वैल्यूज, लॉजिक एंड बिलीफ, इवन इफ इट डज नॉट कवर प्रोसेसेस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आम मेयार भी होता है कुछ चीजों का कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। अर्जेंसी में कोई चीज टाइम सेंसिटिव हो सकती है, क्रिटिकल हो सकती है, उसकी अर्जेंसी है। ये जनाब 3 डायमेंशनल मॉडल मैंने बनाया है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि अर्जेंसी है एक तरफ, लेजिटिमेसी एक तरफ पावर है। अब जो आपके पॉइंट ले करेंगे, किधर गई वो, एक मिनट, हाँ ये बनाए हुए, ये आप देख सकते हैं। ये जनाब अगर जो इस जगह पे जो चीजें प्लेस होंगी, सॉरी, जो इस जगह पे चीजें प्लेस होंगी, मतलब जो इसका मतलब है ये वो वाला जगह है जो अर्जेंसी में भी हाई है, लेजिटिमेसी में भी हाई है, पावर में भी हाई है। दिस इज कॉल्ड डेफिनेटिव, हाई पावर, हाई लेजिटिमेसी, हाई अर्जेंसी। फिर आ जाता है जो ये वाले सेकंड सेक्शन हैं, ये जो पीले वाला सेक्शन है इसको हम कहते हैं डोमिनेंट, हाई पावर, हाई लेजिटिमेसी, लो अर्जेंसी। ये वाला जो नीले वाला है दिस इज डिपेंडेंट, लो पावर, हाई लेजिटिमेसी, हाई अर्जेंसी। और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम डेंजरस कहते हैं, हाई पावर, लो लेजिटिमेसी एंड हाई अर्जेंसी। फिर आ जाते हैं आपके, ये तो तीनों ये वाले हो गए, फिर आपके आ जाते हैं नीचे वाले, ये पीछे ये वाले नीचे वाले जी। ये लाइट येलो कलर जो है ये ये भी डोरमेंट है, हाई पावर, लो लेजिटिमेसी एंड लो अर्जेंसी। जो ये लो ग्रीन है ये है लो पावर, लो लेजिटिमेसी एंड हाई अर्जेंसी, ये डिमांडिंग है। और डिस्क्रिशनरी जो है वो क्या है? लो पावर, हाई लेजिटिमेसी एंड लो अर्जेंसी। इसके बाद ये तीनों का टाइप हो जाएंगे और आखिरी टाइप जो हमारी वो सबसे पीछे सबसे लोअर पड़ी हुई है। हमारे असल में 8 डब्बे हैं ना, तो मैंने 8 डब्बे आपको एक्सप्लेन किए। तो ये जो पीछे वाला डब्बा है ये लो पावर, ये वाला डब्बा लो पावर, लो लेजिटिमेसी और लो अर्जेंसी है। इनको बस वही मैनेज क्लोजली वाली बात करनी है। तो लाजमी बात है कि जब डायमेंशन ज्यादा हो जाएंगी, जब 3 डायमेंशन हो जाएंगी तो फिर 4 डब्बे नहीं रहेंगे, 8 डब्बे हो जाएंगे। इसी तरह अगर 4 डायमेंशन हो जाएंगी तो फिर और बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको, इसी चीज को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है ना ये चार्ट में, ये पावर, लेजिटिमेसी और अर्जेंसी है ना, ये आप देख सकते हैं। जो सेंटर वाली जगह, बिल्कुल सेंटर वाली जगह, दिस इज हाई इन ऑल, ये डेफिनेटिव है, कोर एरिया डेफिनेटिव है।
जो लेजिटिमेसी और अर्जेंसी की का ओवरलैप है वो डिपेंडेंट है, जो अर्जेंसी और पावर का है वो डेंजरस है, जो पावर और डिस्क्रिशनरी का है वो डोमिनेंट है। खाली पावर डोरमेंट, खाली लेजिटिमेसी डिस्क्रिशनरी, खाली डिमांडिंग वो अर्जेंसी डिमांडिंग, राइट। तो ये आपके वो सारे 8 डब्बे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो वाला तो लो ही है ना, वो तो खैर बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर जनाब आपके जो टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं उसमें डेफिनेटिव स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सपेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेटेंट स्टेक होल्डर होते हैं और नॉन स्टेक होल्डर्स होते हैं। डेफिनेटिव वो हैं हैव ऑल 3 एट्रीब्यूट्स, ये जो आपको मैंने बताया सेलियंस मॉडल वाले, ये तीनों एट्रीब्यूट इनके अंदर होते हैं, ये डेफिनेटिव हैं। एक्सपेक्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? हैव 2 ऑफ द 3 एट्रीब्यूट्स and consistently treated and moderate priority. The following types of stakeholders are included in this class. इसमें आ जाती है latent stakeholders, stakeholders with only one of the 3 attributes, और no stakeholder जो तीनों में लो है। जो तीनों में लो है वो stakeholder ही नहीं है, उसको निकाल ही दें, कहानी खत्म उसकी। फिर ये डेफिनेटिव को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कोर है। डेफिनेटिव जो तीनों एट्रीब्यूट्स में हाई हो, these stakeholders have high power, high urgency, high legitimacy. Therefore, you will pay special attention to these stakeholders and manage them closely. वही बात। Sometimes this category is also referred to as definitive. For example, top management of your organization can fall into this category. They have power, legitimacy and urgency. ये है जी डेफिनेटिव आपका। फिर आ गया एक्सपेक्टेंट। इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं एक्सपेक्टेंट में, डोमिनेंट, डेंजरस और डिपेंडेंट। One of the 2 types of stakeholders perceived as having both power and legitimacy. Unlike definitive type, dominants have no urgent claims, मगर वो dominate करते हैं। Such group of individuals can be found often in mature organizations. Dangerous हैं जिनके पास legitimacy ना हो मगर पावर बहुत हो, और पावर और हाँ लेजिटिमेसी ना हो, पावर और अर्जेंसी हो, बस वो शोर शराबा करके काम निकाल दें, भले वो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। इसका मतलब है नॉन एथिकल होने का चांस बहुत ज्यादा है। डिपेंडेंट, दे आर परसीव्ड एज हैविंग लेजिटिमेसी एंड अर्जेंसी बट नो पावर। तो ये डिपेंडेंट है, ये किसी खुद से कुछ नहीं करवा सकते, इनके लिए हमें कोई और करना पड़ेगा। ये तीनों क्लासेस। और इसके बाद ये आ गया लेटेंट। लेटेंट के जो नीचे वाले कलर थे, लाइटर कलर्स, ये इसके बाद है। डोरमेंट है, डिस्क्रिशनरी है और डिमांडिंग है, इनको हम लेटेंट कहते हैं तीनों को। दे आर परसीव्ड एज हैविंग पावर बट नो लेजिटिमेसी एंड नो अर्जेंट क्लेम्स। डिस्क्रिशनरी के पास क्या होता है? परसीव्ड लेजिटिमेसी, बाकी 2 चीजें नहीं है। और डिमांडिंग के पास सिर्फ अर्जेंसी है, तो ये डिमांड कर सकता है जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन पावर भी नहीं है और लेजिटिमेसी भी नहीं है। ये हैं जी ये तीनों टाइप्स। और फिर आखिर में आपके वो आ जाता है ये वाला स्टेक होल्डर, जो कि स्टेक होल्डर है ही नहीं, सब में लो है, और वो ये पीछे वाला है। तो जनाब 8 कैटेगरीज में हमने इसको दिखाया, और इसको हम और तरह से भी दिखा सकते हैं। एक सेलियंस मॉडल का एक और तरीका भी था, वो पता नहीं है या ये है जी, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। क्या कि 2 को तो हमने रखा एक्स और वाई एक्सिस पे, पावर और लेजिटिमेसी को, और अर्जेंसी को हमने वाई एक्सिस में रखा, लेकिन वाई एक्सिस जेड एक्सिस में रखा, उसको दिखाया नहीं जा सकता। हमने कहा कि जो डॉट का साइज है वो जितना बड़ा होगा उतनी अर्जेंसी ज्यादा होगी। ठीक है जी। अब आपको क्या नजर आ रहा है? ये वाला जो है ये डेफिनेटिव है, रेड वाला सबसे बड़ा डॉट है, और रेड जो है वो डेफिनेटिव है, और ये जो जामनी वाले हैं ये एक्सपेक्टेंट है, और ये ग्रीन वाले हैं ये लेटेंट है। तो मतलब वो सारे कलर्स में मैंने आपको दिखा दिए। तो डेफिनेटिव लाजमी बात है बड़ा नजर भी आ रहा है और है भी टॉप हाई पावर और हाई लेजिटिमेसी में, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटिव इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। खैर जनाब, मेरे कहने का मकसद ये था कि ये वो तरीके हैं जिससे हम इनको असेस कर सकते हैं। और ये एक पूरा टेबल भी बनाया हुआ है मैंने कि जनाब जो हाई 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 हैं तीनों चीजों में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको फोकस्ड अटेंशन, क्लोज मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं। कीप सेटिस्फाइड, कीप इन्फॉर्म्ड, और ये दिस इज ट्रू आल्सो फॉर डोमिनेटिंग। डेंजरस के लिए कहते हैं मैनेज कॉशियसली, कीप सेटिस्फाइड,
जो डिपेंडेंट है उसको कहते हैं प्रोन टू रीअलाइनमेंट, कीप देम इन्फॉर्म्ड। जो है डिमांडिंग, इमीडिएट एक्शन मांगता है, उसको मॉनिटर विद केयर। जो डिस्क्रिशनरी है, गुड स्टेक होल्डर है, इंटरफियर ओनली इन केस ऑफ प्रॉब्लम, ये तंग नहीं करता। इसको मैक्रो लेवल पे आप रेगुलर स्टेटस का देखते रहें, रिपोर्टें देखते रहें। डोरमेंट है, इसकी कोई नीड्स नहीं है, ये आपको तंग भी नहीं करता, इसमें नजर रखने की जरूरत है। और जो तीनों चीजों में लो हो उसके ऊपर आप कोई एक्शन ही ना करें। तो मेरा मतलब है स्ट्रेटेजी तो आपको ये बना के दे दी इसने, तो ये जितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, मैं कहता हूं अगर 3 वेरिएबल से ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। ये देखें जी, एक और उसने तरीका है कि ये सैबोट्यूर, इसको सैबोट्यूर क्यूब कहते हैं, कि जी पावर, इंटरेस्ट और एटीट्यूड है, उसके हिसाब से उसने बनाया। उसने कहा जी पावर, इंटरेस्ट और एटीट्यूड, जो इन तीनों में हाई होगा ना, पावर भी ज्यादा होगी, एटीट्यूड भी ज्यादा होगा और इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, ये सैबोट्यूर है, ये गड़बड़ कर देगा, तबाही मचा देगा। जो पावर में हाई है, सिर्फ पावर में हाई है, वो स्लीपिंग जाइंट है। जो एक मिनट जी, हाँ जी, जो सिर्फ एटीट्यूड में हाई है वो ट्रिप वायर है। जो इंटरेस्ट में हाई है वो आपका दोस्त है। फिर जो पावर में और इंटरेस्ट दोनों में हाई है वो सेवियर है। जो पावर और एटीट्यूड दोनों में हाई है वो टाइम बॉम्ब है। और जो कुछ भी नहीं, वो सब में 0-0 है, वो आपका अकाउंटेंस है। तो इसको भी उसने एक तरीका दिया और उसने एक स्टेक होल्डर का क्यूब बना दिया। ये भी बड़ा मजेदार है, इससे भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मतलब ये मैंने काफी कुछ रिसर्च की, मुख्तलिफ जगहों से ढूंढा कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास और किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर के एनालिसिस के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पीएमबीओके में नहीं दिया हुआ था, इसलिए मुझे ये सारी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। अच्छा जी, तो मैं वापस आऊं अपनी स्लाइड के ऊपर। आई होप जी, अर्शद साहब। सर ये जो आपने सारी रिसर्च की थी, ये पीएमबीओके के अलावा मतलब कि सोर्स क्या थी सर इसकी? क्योंकि ये तो अच्छा भला एक रिसर्च पेपर है जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दिखाई है सर। एग्जैक्टली सर, ये बहुत सी जगहों से, मैंने बहुत सी किताबों से और बहुत सी जगहों से चीजें निकाली थी। और मैंने वैसे बेसिकली इसलिए निकाली थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा सकूं, और वो मैंने पेपर से तो कोई नहीं लिखा इसके ऊपर। ये तो अच्छा भला कॉम्प्लेक्स नॉलेज है सर। जी लेकिन पीएमबीओके में सर इसको इन्होंने कवर क्यों नहीं किया इतनी डेप्थ तक? वैसे बाय द वे सर, आपका क्या ख्याल है? बिकॉज जाहिर है वहां पे लोग कंट्रीब्यूट तो करते हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन मसला ये है सर कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं सर। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पीएमआई की तरफ से किताबें लिखी हुई हैं, ठीक तो मतलब है, राइट पीएमआई सर, ठीक सारा नॉलेज तो नहीं डाल सकते थे ना इधर। राइट सर। अच्छा सर, फिर उसके बाद ओके, एक क्या था, हाँ एक ये चार्ट देख लीजिए, इसके ये वाला, इसको कहते हैं जी स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि सारे जैसे वो डायग्राम, वो क्या कहते हैं, डायग्रामेटिकली बना हुआ था, ये टेबुलर बना हुआ है। स्टेक होल्डर का नाम लिखें, नंबर लिखें, नाम लिखें, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बताएं, उसकी असेसमेंट बताएं, और उसके आगे जो आपको उससे रवैया रखना है वो लिखें कि मैंने क्लोज दी है, क्या कार्रवाई करनी है। तो उसकी मतलब ये टेबुलर फॉर्म में आप स्टैटिक को यहाँ लिख सकते हैं। इसको भी रेफर किया जा सकता है, ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन एज मेनी वेज देर आर। फिर जनाब आगे आ जाता है स्टेक होल्डर रजिस्टर की क्या एंट्री होनी है, उसमें क्या क्या होता है। अच्छा याद रखिएगा कि स्टेक होल्डर स्ट्रेटजी रजिस्टर में नहीं लिखी जाएगी। स्टेक होल्डर स्ट्रेटजी रजिस्टर में नहीं लिखी जाएगी, उसकी अलग लॉग होगा उसका। वजह उसकी क्या है कि स्ट्रेटजी है कि हम किसी के साथ कैसे डील कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट टू बी शेयर्ड। लेकिन स्टेक होल्डर रजिस्टर इज अ डॉक्यूमेंट which is commonly shared with everyone, because we do not want to share our strategy because that may have कोई मतलब इन्फ्लुएंस हो सकता है लोगों को, यार ये हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो इसलिए हम उसको
रजिस्टर का पार्ट नहीं बनाते। रजिस्टर में क्या है, कोई उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, नाम होगा उस स्टेक होल्डर का, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन होगी, लोकेशन होगी, रोल इन प्रोजेक्ट होगा, फिर उसका कोई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगी, फिर उसकी असेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, मेजर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेन उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस उसकी प्रोजेक्ट पे क्या है, किस प्रोजेक्ट की फेज के अंदर वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, और आखिर में स्टेक होल्डर को आप कैसे क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, सपोर्टर है, न्यूट्रल है या रजिस्टर है, ये भी चीजें मैटर करती हैं। द स्टेक होल्डर रजिस्टर शुड बी कंसल्टेड एंड अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, एज स्टेक होल्डर्स मे चेंज आर न्यू वंस आइडेंटिफाइड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जनाब, यहां तक तो हमने बहुत तफसील के साथ बात कर ली स्टेक होल्डर की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। अब हम प्लानिंग में आ गए हैं। यहां पर हम अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं टू इफेक्टिवली एंगेज द स्टेक होल्डर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो कि पीछे हुआ था ऑफ देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट सक्सेस। तो की बेनिफिट ये है कि इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्शनेबल प्लान टू इंटरेक्ट विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट इंटरेस्ट। तो इसके जो इनपुट्स आउटपुट्स हैं वो बड़े सिंपल हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो होगा ही होगा, स्टेक होल्डर रजिस्टर जो वहां से बन के आया है वो चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और प्रोसेस एसेट्स हैं, एक्सपर्ट जजमेंट भी पता है, मीटिंग्स भी पता है, और एनालिटिकल टेक्निक आपने यूजुअली देखा होगा कि जहां पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, तो उस लाजमी बात है कि आपने मैनेज और उसमें आगे जाके इस्तेमाल करना होगा, तो वो एनालिटिक्स जो है वो यहाँ पता होनी चाहिए। ठीक है जी। ऑल दो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान के अंदर आपने लिखना तो है ना कि सेलियंस मॉडल कैसे बनेगा, फलानी चीज बनानी है नहीं बनानी है, तो आपको उतना नॉलेज होना चाहिए, उस हद तक एनालिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान इससे निकलेगा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे। तो यहाँ कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। हाँ ये है, एनालिटिकल टेक्निक्स में आप स्टेक होल्डर को याद होगा, आपने जब स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाया था तो उसमें आपने लिखा था कि ये क्या है, अनअवेयर है, रेजिस्टेंट है, किस किस्म का स्टेक होल्डर है। अब इससे हम जब एनालिसिस करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि स्टेक होल्डर इनिशियली किस स्टेटस में हमारे पास आया था, अनअवेयर था, रेजिस्टेंट था, न्यूट्रल था, सपोर्टर था या लीडिंग था, और हम इसे कहां देखना चाहते हैं। इस हवाले से हम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स बनाते हैं, विच इज सी इज द करंट स्टेट एंड डी इज द डिजायर्ड स्टेट। सारे स्टेक होल्डर्स के नाम एक तरफ लिख लेते हैं, आगे 3 कॉलम बना लेते हैं, अनअवेयर, रेजिस्टेंट, न्यूट्रल, सपोर्टिव और लीडिंग का, और जब वो आइडेंटिफाई हुआ था तब का उसका स्टेटस सी लिख देते हैं वहां पर, और जहां हमसे देखना चाहते हैं वहां डी लिख देते हैं। मतलब ये कि स्टेक होल्डर 1 जब आया था तो उसको पता ही नहीं था कि मैं स्टेक होल्डर हूं उनका, ही वॉज कंप्लीटली अनअवेयर। अब हम उसको ग्रूम करके, पढ़ा लिखा के, समझा के, हम उसको अल्टीमेटली अपने सपोर्टर की नजर में देखते हैं। स्टेक होल्डर 2 जो कि न्यूट्रल था, उसको भी मैं सपोर्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो पहले से सपोर्टर था उसको भी मैं यही देखना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रेजिस्टेंट होता तो मे बी मेरी स्ट्रेटजी होती कि उसे न्यूट्रल कर दूं या उसे सपोर्टर बना लूं, लेकिन लाजमी बात है ऐसा नहीं होगा कि उसे अनअवेयर कर दूं। उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, हम उसको दाईं तरफ लेके आएंगे, न्यूट्रल, सपोर्टर या लीडिंग की तरफ। लेकिन लाजमी बात है कि रेजिस्टेंट को एकदम लीडिंग रोल तो नहीं दिया जा सकता, उसे मेरे ख्याल में सबसे पहले उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। अगर आप वो सिंगल स्टेप स्ट्रेटजी करते हैं तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करें, और न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सपोर्टर में डेवलप करें। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम इज अवेलेबल टू यू। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं, डिजायर्ड और करंट एंगेजमेंट लेवल्स ऑफ की स्टेक होल्डर, जैसे अभी आपको दिखाया, स्कोप एंड इंपैक्ट ऑफ चेंज टू द स्टेक होल्डर, जब भी कोई चेंज आएगी स्टेक होल्डर पे उसका कब, कहां, कैसे इंपैक्ट बनेगा, उसको कैसे डील करना है। आइडेंटिफाइड इंटर रिलेशनशिप्स एंड पोटेंशियल ओवरलैप बिटवीन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स एक बहुत बड़ा मसला है, जितने मुंह उतनी बातें। सारे स्टेक होल्डर्स को खुश नहीं किया जा सकता। हमें ये देखना होगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इन सब की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को मैप करूं तो मैं देखूं ओवरलैप एरिया कौन सा आ रहा है, ज्यादा स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं, तो मैं उन
चीजों पे ज्यादा फोकस करूं जो सारे स्टेक होल्डर ही एग्री करते हैं या मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर एग्री करते हैं, मैं उन नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूं और दूसरों को भी दूं, लेकिन फिर उसकी सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इस तरह करके स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है, किसको क्या क्या खबरें मिलनी चाहिए, किस किस से उसने कम्युनिकेट करना है और कब कब करना है, क्या हिसाब किताब है, तो वो करंट प्रोजेक्ट फेज में ये मुझे पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेक होल्डर, वो जो इन्फॉर्मेशन हमें कोई रिपोर्ट या कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, किस जुबान में चाहता है, किस फॉर्मेट में चाहता है, कितनी डिटेल में हो, कंटेंट उसका क्या हो, मतलब उसका फॉर्मेट के अंदर क्या क्या हो, फिर रीजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट टू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अगर हम कोई रिपोर्ट स्टेक होल्डर को देते हैं, उससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, वो हमें क्या अच्छा समझेगा या क्या करेगा, मतलब व्हाट इज द रिजल्ट। वही बात है ना कि उसकी एंगेजमेंट क्या हमसे बेहतर हो जाएगी या क्या क्या होगा उससे, उस चीज को ध्यान में रखिए। अगर तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा तो बिला वजह की रिपोर्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। टाइम फ्रेम एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, कौन सी चीज कब तक उसे मिलनी चाहिए, कितनी कौन सी चीज डिले की जा सकती है। मेथड फॉर अपडेटिंग एंड रिफाइनिंग द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस एंड डेवलप्स। राइट जी, इधर मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना पसंद करूंगा क्योंकि आखिरी दो प्रोसेस जो है मैनेज और कंट्रोल, फिर हम ब्रेक के बाद देखते हैं, लेकिन इसके बाद ब्रेक के बाद मैं आपसे क्वेश्चंस भी लेता हूँ। सो लेट्स हैव अ लिटिल ब्रेक। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह अभी इमीडिएटली नहीं है तो हम ब्रेक कर सकते हैं। चलिए जी, लेट्स हैव ब्रेक। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।
जी वसीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर सलामकुम। नो सर, मैं आई थॉट कि मुझे वॉइस नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब, वापस आ गए हैं सारे लोग? जी जनाब, क्लास खत्म, वो ब्रेक खत्म हो गई, 15 मिनट हो गए। आर यू देयर? जी जनाब, शुरू करें कि ना करें? कोई लोग हैं यहाँ पर? चलिए शुक्र है, 2 बंदे तो हैं। ओके जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। अगला प्रोसेस है स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट का। और स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट का मकसद ये है, जैसे मैंने कम्युनिकेशन में भी जिक्र किया था। देखें जी, जब एग्जीक्यूशन हो रही है, प्लान आपने किया हुआ है स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करना है, बहुत अच्छा आपने स्ट्रेटजी भी बनाई और सारा सब कुछ अंदाजा आपने अच्छा प्लान किया हुआ है। और फिर साथ साथ ये भी है कि यू आर कॉन्टिन्यूसली अपडेटिंग अपना जो प्लान है वो अपडेट करते जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं नए स्टेक होल्डर, नया एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब वेन एवर यू टेक एक्शन, एक्शन वुड बी ऑन द करंट सिचुएशन। एक बात तो ये पक्की है। अब जबकि एग्जीक्यूशन हो रही है और काम हो रहा है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि स्टेक होल्डर के साथ साथ रहें और उससे ये कंफर्म करें कि सर खुश हैं। आते जाते उससे पूछें कि जनाब वो जो रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स आपको मिलनी थी, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्या वो मिल रही हैं? आप खुश हैं? कोई और मसला हो तो बताएं सर, खिदमत के लिए हाजिर हूँ। कोई और नीड्स, कोई और एक्सपेक्टेशन, अगर कोई तब्दीली है तो मुझे बताएं, अभी हाजिर करता हूँ जनाब। मैं अभी मतलब आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उसको मौका नहीं देना आपने कि वो शिकायत किसी तरफ से भी कर सके। तो मैनेज एक्सपेक्टेशंस, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट तभी होती है जब काम हो रहा हो और आप साथ साथ प्रोडक्ट कर रहे हो। मुझे याद, मेरा ख्याल है आपको मैंने वो एग्जांपल दी थी कि आई डोंट नो अगर मैं कभी रिपीट कर जाऊं चीजें, क्योंकि मैं अक्सर कर जाता होता हूँ ऐसी चीजें। एक इधर पिज्जा का आउटलेट है इस्लामाबाद में, रेड ओनियन के नाम से। वो अच्छा होता था किसी जमाने में, फिर उसकी क्वालिटी काफी डाउन हो गई, छोड़ दिया हमने जाना वहां पर। तो एक दफा वहां से गुजर रहे थे तो काफी काफी बत्तियां शत्तियां लगी हुई और ठीक ठाक हुई, साफ सुथरा हुआ हुआ।
तो हमने कहा यार बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने कहा चलो देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं। फैमिली के साथ था, मैं अंदर, हम चले गए। अंदर जाने के लिए जो ही दरवाजा खोला तो एक साहब जो बिल्कुल ही काउंटर के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ये वो, जैसे वो हमें जानता हो, बहुत ही जैसे ना क्लोज कोई रहा हो। और मैंने कहा यार ये कौन है बंदा, इसको मैं जानता नहीं हूँ। और वो जनाब, नहीं इधर इधर आए सर, इधर इधर हम एक जगह बैठने लगे। नहीं नहीं इधर ना, इधर आए सर, ये बड़ी अच्छी सीटें हैं। अच्छा जी, उनको सब फैमिली को बिठाया, खुद भी साथ बैठ गया। और सर क्या हाल है, किधर होते हैं आजकल? जो मैं हैरान कि भाई ये कौन है, क्या मैं उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतने में क्या खाएंगे सर? मैंने कहा नहीं हम ऑर्डर कर लेंगे। नहीं नहीं मैं बताता हूँ सर, आप फिक्र ही ना करें। उसने वेटर को आवाज मारी, वेटर आ गया, उसको ऑर्डर दिया। इसने बाकायदा उस ऑर्डर में अमेंडमेंट्स की। इसने कहा नहीं सर इसमें ये नहीं, आप ये नहीं, ये चीज मंगवाएं, ये बहुत अच्छी है, ऐसा करें वैसा करें। खैर जो भी था वो एक उसका ऑर्डर हुआ। और ही केप्ट सिटिंग एंड चैटिंग विद अस। और वो हमें उस वक्त तक पता चल गया था कि ये मैनेजर है। और मीनवाइल कोई और एंटर हुआ दरवाजे से। जो ही दूसरी पार्टी एंटर हुई, इसने हमसे माजरत की, सर मैं अभी आया हूं, जैसे कोई बहुत जरूरी काम होता है बंदा। और जाके इसने उन लोगों को एग्जैक्टली द सेम रॉयल ट्रीटमेंट, और फिर उनको बिठाया, फिर घूमता घाम, एंड ही वाज कॉन्टिन्यूसली कभी इस ग्रुप के पास, कभी उस ग्रुप के पास। बीच में कहीं फारे हुआ, हमारा खाना आ चुका था, फिर आके हमारे साथ बैठ गया, सर कैसा टेस्ट है, मजा आ रहा है, ये है वो है, कोई खराबी हो तो बताएं, अगली दफा इम्प्रूव कर देंगे, अगर गलत है तो मैं अभी आपको ऑर्डर चेंज कराया तो मैं अभी मंगा के देता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि आप मुझे बताएं, स्टेक होल्डर नाराज हो तो किस बात पे हो? वो कह रहा है कि यार मैं तुम्हें नया पिज्जा मंगा देता हूँ अगर तुम्हें जरा सा भी टेस्ट पसंद नहीं आया, कोई और है। और कौन कह रहा है? द टॉप पर्सन, जो मैनेजर कह रहा है, वो वेटर भी नहीं कह रहा, मैनेजर कह रहा है। तो इसका मतलब है कि आप बताएं कि आपका बायन बनता है कि नहीं बनता है। मैं ये समझता हूं कि अच्छा, फिर उसके बाद ये कि जब वहां से हम फारिग होकर निकले, उसने हमारा बड़ा शुक्रिया किया, उसने कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीमें खिलाई। उसके बाद उसने जनाब हमें वो कूपन्स दिए कि जी आप आइंदा कभी आए तो इन कूपन्स के साथ आपको हम हाफ प्राइस में करेंगे, और ये होगा और वो होगा। और हमने रेगुलरली उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया, और वो हमेशा हमें इसी तरह से, और हमें क्या, अपने सारे ही क्लाइंट्स को वो इसी तरह रॉयल ट्रीटमेंट देता था। एंड द डे ही लेफ्ट, वहां लोगों ने जाना छोड़ दिया, खत्म कहानी। ये है पावर जनाब आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर मूव्स द बक। तो जनाब आप ये समझिए कि जैसे वो कस्टमर हम थे उसके, ये आपका स्टेक होल्डर है, और आप उस मैनेजर की पोजीशन में हैं, और आप हर स्टेक होल्डर के आगे पीछे फिर रहे हैं, और उसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप उसको जनाब बता रहे हैं कि सर आपका फलानी रिक्वायरमेंट थी, देखें कितनी पूरी हुई, नहीं हुई, कैसा है। यू आर डिस्कसिंग इट आउट एवरीथिंग विद हिम। तो स्टेक होल्डर कैसे नहीं मानेगा? In comparison to that, I have had experiences in Marriott and other places. मैनेजर साहब तशरीफ लाते हैं, कोट सूट पहना हुआ है, आते हैं, और बड़े फॉर्मल से अंदाज में, जैसे कहते हैं ना, पूछना भी ना चाहता हो, बस सर हाउ आर यू, सर खाना कैसा है, बस इससे काम नहीं चलता, इससे काम नहीं चलता। दिस इज नॉट एनफ, बल्कि दिस इज मोर ऑफ अ डिस्टर्बेंस। यार मैं खाना खा रहा हूँ और तू बीच में आगे, यू आर मतलब डिस्टर्बिंग मी, और ये क्या बात हुई? मतलब उसको इतनी भी तमीज नहीं है किस वक्त उसने बात करनी है, वो ऐन दरमियान में आके वारिद होगा, सर खाना कैसा है। खैर एनीवे, मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ये जो करेक्टर था जिसका मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, दिस वाज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज completely addressing all the stakeholder needs and requirements. And this is the engagement, he is managing the engagement right on the show, बिल्कुल up front, जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बॉर्डर के ऊपर। ये दिस वाज एक्शन। अच्छा, अब फर्ज करें कि हम गए और हम वापस आ गए, हमने खाना खा लिया। अब जो उसने बाद में डी ब्रीफिंग करनी है अपने स्टाफ की, जो सोच विचार करनी है कि यार आज कौन सा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं गया, क्या हुआ, आज हमने क्या खोया, क्या पाया, कल हमें क्या इंप्रूव करना है, दैट इज कंट्रोल। और फिर कल के लिए हम क्या इंप्रूवमेंट करें। कल जनाब
हम ना भी एक बंदा बढ़ा देते हैं या कुक एक घटा देते हैं या क्या करते हैं, ये आपकी जो स्ट्रेटजीज होंगी ये कंट्रोल के चक्कर में होंगी। मैनेज स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद स्टेकहोल्डर टू कीप their needs and expectation, address issues as they occur, ये जरूरी है, एग्जीक्यूशन में चीजें होंगी as they occur, and foster appropriate stakeholder engagement in project activities throughout the project life cycle. Key benefit of this process is that it allows the project manager to increase support and minimize resistance. अब आप ये देखिए जरा, इस बात को समझिए कि इंक्रीज सपोर्ट, लाजमी बात है, जब आप उस बंदे के इतना करीब हो रहे हैं और उसको हर चीज में हेल्प कर रहे हैं तो सपोर्ट तो बढ़ेगी और रेजिस्टेंस घटेगी, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द चांसेस टू अचीव प्रोजेक्ट सक्सेस। तो आप ये बताएं कि मतलब ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप सक्सेस को थ्रू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, और क्या चाहते हैं? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान है जी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, ये दोनों मुझे चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं एग्जीक्यूशन में हूँ, तो मुझे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक चेक करना है कि स्टेक होल्डर की नीड्स एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। अगर कोई चेंज लॉग है उसे सामने रखना है, प्रोसेस एसेट्स को देखना है। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन मेथड्स को इस्तेमाल करूंगा, वही जो कम्युनिकेशन वाला इस्तेमाल करे वही मेथड मैं भी इस्तेमाल करूंगा, और फिर इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे मेरे और मैनेजमेंट स्किल्स होंगे। इश्यूज को मैं बाकायदा लॉक करूंगा और एस्केलेट करूंगा इफ रिक्वायर्ड। चेंज रिक्वेस्ट अगर कोई है तो उसको फौरी तौर पे मूव किया जाएगा, उस पर एक्शन होगा। प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इसके नतीजे में अपडेट हो जाएंगे। मैनेज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में जो एक्टिविटीज हैं, एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स एट अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट स्टेजेस, अप्रोप्रिएट सही वक्त पर, टू ऑब्टेन और कंफर्म देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, बातों बातों में ये नहीं होता कि आप सारे से साइन करो, अंगूठा लगा के जाओ, नहीं तो हम नहीं छोड़ते। तो एंगेज आपने स्टेक होल्डर को ऐसे करना है कि उसका बाय नो, उसका खुद दिल करे। अब मार्केटिंग वाले बड़े तेज होते हैं। अभी मैं कल एक वो वेबसाइट पे देख रहा था कि वो कोई चीज सेल कर रहे हैं, कहते हैं जी बस ये तो पता नहीं क्या कमाल की चीज है, ये है वो। आप जितना उसको पढ़ते जाएं उतना आपको लगता है कि यार आई एम मिसिंग इट, को पता नहीं क्या चक्कर है, और आप उसमें फंस जाएं एक दफा, फिर आपको लग पता जाता है। तो एंगेज कैसे किया जाए स्टेक होल्डर को, ये एक बड़ा साइंस है। फिर मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन थ्रू नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन, ensuring project goals are achieved, addressing potential concerns that have not yet become issues, and anticipating future problems that may be raised by stakeholders. Such concerns need to be identified and discussed as soon as possible to assess associated project risks and clarifying and resolving issues that have been identified. तो ये जनाब, ये आपकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनती है जो आपने करनी है। मैनेजमेंट स्किल में आप क्या क्या कमाल दिखाएंगे? फैसिलिटेट कंसेंसस टुवर्ड्स प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, डिस्कस करें उसके साथ कि जनाब हमारा इस बात में शुरू में कंसेंसस नहीं था, आपका अब क्या ख्याल है, अब तक आपने परफॉर्मेंस हमारी देखी है। इन्फ्लुएंस पीपल टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, negotiate agreement to satisfy the project need, and modify organizational behavior to accept the project outcomes. Control stakeholder engagement में, कंट्रोल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, क्योंकि अब जहां खत्म हो रहा है काम, ये आखिरी प्रोसेस है, तो लाजमी होता है प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो कंट्रोल में हमने ये इंश्योर करना है कि स्टेक होल्डर के साथ जो रवैया रखा गया उसका पोस्टमार्टम करके हम चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करके चेक करते हैं, हाउ वेल डिड इट गो, एंड इफ समथिंग स्टिल वी कैन डू, अगर हम कोई चीज तब्दील कर सकते हैं बाकी काम के अंदर और इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो बहुत आला। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स, ये बकाया काम के लिए। द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इट विल maintain or increase the efficiency or effectiveness of stakeholder engagement activities as the project evolves and its environment changes. इसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इसमें वो इशू लॉग आ गया है, प्रोजेक्ट प्लान आ गया है, और खास तौर पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो है उसको हम जहां एनालाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, एक्सपर्ट सिस्टम है, जजमेंट है और मीटिंग्स हैं। जो आपने वर्क परफॉर्मेंस डाटा था उसका इस टूल्स एंड टेक्निक्स में उसको हमने असेस करके उससे हमने इंफॉर्मेशन निकाली, और अगर चेंज रिक्वेस्ट बनती है चेंज रिक्वेस्ट निकाली, और बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के नतीजे में अपडेट हो गए।
तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो इसके अंदर जिक्र किया गया है, दैट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड टूल फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर टू कैप्चर, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। इसको वर्क फ्लो सिस्टम भी कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग MIS लगाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजर, कुछ भी आप कह लें उसको। ऑटोमेटेड सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट कॉस्ट, स्केड्यूल, प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो अलाउज द प्रोजेक्ट मैनेजर टू कंसोलिडेट report from several systems, facilitate report distribution to the project stakeholders. Examples of distribution formats may include table reporting, spreadsheet analysis and presentations. Graphical capabilities can be used to create visual representation of project performance information. So ये है जी आपकी कंट्रोल स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट। यहाँ पे सर मेरा पोर्शन तो हो गया कंप्लीट। बाकी आप लोग बताइए कि आपने कोई और चीज डिस्कस करनी है, क्या सिलसिला है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जी जनाब, टू यू। जी जनाब, प्लीज यू कैन रेज हैंड एंड जी अर्शद साहब। सर आपकी इस लास्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अभी आपकी और कोई क्लास नहीं होगी सर? नहीं, मेरी क्लासेस तो खत्म होगी ना सर, आपके फाइनल एग्जाम ही होगा। एक देखे ना, आपकी एक क्लास अभी अगली जो है अगले हफ्ते मंडे को वो होगी खुर्रम की प्रोक्योरमेंट की, और ट्यूसडे को वसीम की क्लास होगी MS प्रोजेक्ट की, फिर उससे अगले हफ्ते मंडे को वसीम की क्लास होगी प्राइमावीरा की, और ट्यूसडे को आपका एग्जाम हो जाएगा फाइनल। ठीक है, राइट सर। सर इस बारे में एक मैंने क्वेश्चन सर ये करना था कि आपको जो थ्रू आउट आपने पढ़ाया है ना सर, जो क्लासेस वगैरह ली हैं, उसमें मुझे मेरी जाती फीलिंग ये है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज्यादा प्रो स्टेक होल्डर, प्रो एंगेजिंग, ये आज के लेक्चर में जनरल में बात कर रहा हूँ कि सर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा एंगेजिंग और बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव, फ्लेक्सिबल, किस तरह के क्वालिटीज के साथ रखा है सर। और ये शेड मेरे ख्याल एजाइल में भी नजर आते हैं। जी जी क्या ये एजाइल की वजह से है, कुछ चेंजिंग ट्रेंड्स है, या प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा से ऐसा ही था? दैट्स वन क्वेश्चन। और सर हम तो हमेशा से ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये एजाइल तो अभी आया है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर तो ऐसे ही है, मतलब यू हैव टू बी हाईली फ्लेक्सिबल। मेरा मतलब है वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ रेड ओनियन वाली, उस बंदे ने एजाइल तो नहीं पढ़ी हुई थी। जी सर बिल्कुल, आपने सबसे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में यही वाली एग्जांपल दी थी। मतलब आपकी एक्सपीरियंस में बिकॉज़ यू हैव अराउंड मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में सर, आप तो क्या हमेशा से ऐसा ही प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल था, या कभी कभी ये फेल भी होता है? ही हैज टू बी स्टर्न एट सम टाइम्स, या कुछ उसने ही हैज टू मैनेज द थिंग्स स्मार्टली, ऐसी कुछ चीजें भी हैं सर? कोई झगड़े भी हो जाते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? सर वो तो टेम्परामेंट्स होते हैं ना। पहली बात तो ये कि सक्सेस की जहां तक बात है ना, उसकी दो बातें हैं। शुरू में मैंने बताया था कि या तो आप ना अहल हैं, या जो अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। अगर आपका या आपके काम करने का अंदाज ठीक नहीं है तो फेलियर हो सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है और आपका कसूर है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी जो कि बिल्ट इन टू दी प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट फेल होता है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो वो हो सकता है कि बेहतरीन प्रोजेक्ट मैनेजर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और उसका प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, अनसर्टेनिटी किसी के साथ भी। लेकिन इस बात के बहुत कम चांसेस हैं, मतलब ग्रेटर आर द चांसेस हियर टू सक्सीड। आप देखें ना, वो जैसे वो क्या नाम है उसका, पॉल कोलो जो है, क्या नाम है, वो कहता है कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो कुदरत पूरी आपके जो गोल है, आपके अकम्प्लिशमेंट है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए चल पड़ती है। पूरी कुदरत जो है वो नेचर इटसेल्फ आपका मकसद करवाने के लिए अनथक मेहनत में लग जाती है। लेकिन आपने पहले ये शो करना होता है कि मैं कोई नीयत रखता हूं और मैं उसके लिए कोई एफर्ट करने के लिए तैयार हूं। जब आप वो एफर्ट एक खास अपनी, जैसे कहते हैं इंसान अपनी हद तक की एफर्ट दिखा देता है, तो फिर कुदरत खुद चल के सामने आती है और उसे कहती है पुत्र हुन तू आराम कर, अब हम तुझे लेके जाते हैं। तो ये वो वाली बात है कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपको नाकाम कैसे कोई होने देगा। जो आपके शॉर्ट, ठीक है, जो आपके सर एक चीज, सर एक क्वेश्चन
सर एक मेरा क्वेश्चन सर और था कि आप एग्जाम के हवाले से आपने बात की है सर, कोई इनिशियली एक क्विज हुआ था और एक आध क्विज जो ऑनलाइन आपने सर क्लासेस में लिया था वो समहाउ मैं मिस कर गया। इज इट पॉसिबल कि सर आपको 10-15 जरा कोई सैंपल क्वेश्चन ऐसे ही फ्लोट कर दें ग्रुप में 10-15-20 तक ताकि वो बेशक एग्जाम में ना आए बट थोड़ा अंदाजा हो जाए कि इस किस्म की चीज होगी, बिकॉज वी सीरियसली वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम सर, दैट्स द रीजन सर। मैं देखता हूँ मैं उसमें जी सर, ऐसे कोई 15-20-25 क्वेश्चन हो ताकि हम हमें एक वो मॉडल का अंदाजा हो जाए, उसके हिसाब से फिर हम सोचना शुरू करें और फिर उसके हिसाब से हम थोड़ा सा। जी सर, दैट्स द आइडिया एंड विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। श्योर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करते हैं सर थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, और कोई बात, कोई और एनीवन एल्स? जी उमर मसूद जनाब। सर आवाज नहीं आ रही। जी उमर साहब। सर आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। मैं आ रही है? जी अब आई। सर मैंने ये पूछना था कि जो हमने शुरू में एक चार्ट पढ़ा था जिसमें नॉलेज एरियाज और प्रोसेस ग्रुप्स वगैरह जी जिसमें बने हुए थे सारे, क्या सर मैंने ये पूछना है कि अगर हम इस सारे नॉलेज को प्रैक्टिकल किसी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो सर किस तरह से अप्लाई करेंगे? मतलब कि हम लोग नॉलेज एरियाज को देके करेंगे या प्रोसेस ग्रुप को देके करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं पहले इनिशिएटिंग से शुरू कर दूं तो सर मुझे पहले डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर करना पड़ेगा और एंड में आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, ये हिसाब से हम लोग करेंगे, फिर प्लानिंग पे जाएंगे, उसके सारे प्रोसेस ग्रुप को अप्लाई करेंगे फिर एग्जीक्यूटिंग में, या हम लोग जो है ना नॉलेज एरिया के हिसाब से करेंगे पहले प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के तमाम प्रोसेस ग्रुप को अप्लाई कर दें? नहीं सर, ये दोनों चीजें जो है ना ये सीक्वेंशियल नहीं है। ये सीक्वेंशियल नहीं है। आपको एक नेटवर्क समझाया था कि यहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक काम ये करें फिर ये करें फिर ये करें। एक सीक्वेंस में थोड़ी काम हो रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, चार्टर बना, चार्टर बनने के बाद फिर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर हुआ, उसके बाद फिर आप आ जाते हैं प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग में सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनना शुरू हुआ, उसके बाद आपने क्या कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना शुरू किया। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी की, रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने के बाद फिर आपने अपना स्कोप स्टेटमेंट बनाई। ये जो स्कोप स्टेटमेंट तक बनाने का अमल है, या फॉर दैट मैटर WPS बनाने तक का अमल, इसमें तो सीक्वेंस मिलता है यहाँ तक। लेकिन जब WPS बन जाता है तो फिर चीजें साइमल्टेनियसली शुरू हो जाती हैं। ये टाइम की भी काम शुरू हो जाते हैं, कॉस्ट के भी, रिस्क के भी, इसके भी, उसके भी, और वो वक्तन फवक्तन जहां जहां जरूरत पड़ती है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये बात कहना गलत होगा कि अगर आप प्रोसेस चलेंगे तो ठीक है, या आप अगर नॉलेज एरिया चीजें ठीक कर ही नहीं। That is not a sequence. That is just a system of categorizing the processes either from the project management process group's point of view or project management knowledge area point of view. मगर अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो प्रोसेस ग्रुप जरा थोड़ी सी ज्यादा एप्लीकेबल है, लेकिन उसके अंदर भी चूंकि मैंने आपको बताया था कि थिंग्स आर हैपनिंग इन पैरेलल, अ लॉट मेनी थिंग्स। एग्जीक्यूशन जब हो रही होती है तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑन होती है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो मॉनिटरिंग कंट्रोल शुरू होगी। एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग कंट्रोल साथ साथ चल रही है, प्लानिंग भी साथ साथ चल रही है। अब जो हम बात अभी कर रहे थे आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, जो रिपीटेडली होते रहना है, ये आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स और उनकी सारा एनालिसिस ये होता रहेगा। ये शुरू से शुरू हुआ है, होता रहेगा, ये खत्म थोड़ी होना है। तो इसलिए ये सीक्वेंस के हवाले से अपना देखें। जी जनाब, और कोई? जी अच्छा जी, चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कॉल इट अ डे। आज आपको घंटा पहले छुट्टी दे देते हैं, मजे करें आज आप। और ये है कि अगर आपको फिर भी कहीं जरूरत पड़ती है और कोई चीज है जो समझनी है या कोई डिस्कस करना है टॉपिक, तो यू कैन स्टिल कांटेक्ट मी, और आप मेरे से टाइम रख के
तो एक आध घंटा हम और भी लगा सकते हैं, एज यू विश, आप लोगों की अपनी मर्जी है। और आप में से जो लोग पीएमपी करना चाहते हैं तो वो मेरा ख्याल है अब इस हाई टाइम, अब आप तैयारी करनी शुरू कर दें, एग्जाम दे दें, जिसने भी देना है। मेरे ख्याल में आप लोग तैयार हैं और इस एग्जाम के बाद आपको अंदाजा भी हो जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। सी यू अगेन ऑन exam day.